वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम पिटमैन न्यूरा से आपको बेसिक कोर्स करा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से, उम्मीद है हमारे यूट्यूब से कोर्स कर रहे होंगे। और पिछली हमारी जो क्लास थी 22, उसमें हमने आपको बताया था कि ये अगली क्लास यानी कि जो आज की क्लास है 23, ये डिक्टेशन से स्टार्ट होगी। मैंने आपको कहा था आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए। डिक्टेशन के बाद हम जो क्लास के जो रूल हैं चैप्टर 12 के, वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम डिक्टेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रेडी? एक्सरसाइज नंबर 28 स्टार्ट। We wish to be of service to you, and we shall be happy to change the shoes if you will mail them to us. May we know when you will have the new designs for the ladies suits ready for us. What is the cause of the delay? You seem to be slow in making them up. You will receive them in a few days. We hope you will excuse the delay. We are slow because of our desire to give you designs which will be different and new, and it takes many hours to make them. We highly value the share of your business which you have give us for several years. In the face of these facts, we think you are wrong in passing on the charges to us. Thomas wishes to go with us to the baseball game on Saturday. If he goes with us, he will take us in his car. When is the summary of which you speak to be ready? Samuel Johnson, whose speech appears in today's news, speaks tonight at the academy. What is his subject? His topic is Signs of the Times. I think he usually speaks on several subjects. James Smith thinks the firm charge too high a fee for these maps. They charge us 5 guineas a set, and he thinks we can get them for less. He will show us how we can secure them for
4 guineas a set and does save a zinnia. What is the size of the box? It is 6 inches wide and 5 inches deep. I use it for the purpose of saving odd pennies. Exercise number 29. When we insure a package which we dispatch by mail, do we get a receipt? A zeal for justice should be the mark of each citizen, high or low, rich or poor. We readily obey laws which history teaches are the wisdom of centuries. We have several large desks which we wish to dispose of. I think we should reduce them to 6 guineas apiece. And if we do so, we ought to succeed in disposing of them. Besides the desks, we have several large red rugs which we have had in the shop too long, and I think we ought to put them on sale too. If we make them cheap enough, we should have many customers for them. What do you think? I wish you would come to the city and discuss this sale with us. Next, exercise number 30. I wish to cancel my passage on the vessel sailing on 16th March. The Judges' Council is wise and sincere, and I think we should listen to what he says. I will write to an officer of the firm today, and when I receive an answer, I will get in touch with you. When you know these lessons thoroughly, you will be on your way to a business career. Next, exercise number 31. It will assist me if you will make up an itemized list of all the stock we have in the store. The list should also state the cost of each items. Although our costs are high, we have always refused
to lessen the value of our service. Honest value assist our firm to keep its customers and also to secure new buyers. Our silk may be subjected to any test you may wish to make. We think your first step should be to stop waste as fast as you can. We suggest adjusting your charges as the next step. Our sales this year already exceed all of our sales for last year. Although you invoiced the steel posts to us last month, we are still having to make do with stone posts. Your failure to get them to us on time has caused a big upset in the schedule and has cost a large sum of money. We shall do our best to influence him to cancel the debt. In the past, we have used this style of pencil and we know it will be all right for your purpose. Almost all types of stencils have a mark to show when you reach the bottom of the पेज। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको 31 तक डिक्टेट किया। अभी हम जो हमारा क्लास का चैप्टर बाकी है 12th का कुछ पार्ट, वो अभी हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम डिक्टेशन वाला सेशन ख़त्म करके क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं लास्ट 22 नंबर क्लास में चैप्टर 12th का कुछ पार्ट बाकी था, लेकिन मैं इस क्लास में जो बता रहा हूँ आपको, ये जो हमने चैप्टर 12th में जो पार्ट छोड़ा था वो एफ और वी हुक और एन हुक फाइनल में हमने यूज़ किए थे। कर्व के इनसाइड एन हुक यूज़ किया था और स्ट्रेट स्ट्रोक में हमने एन हुक को क्लॉकवाइज मोशन, इट मीन्स एस सर्कल के अपोजिट यूज़ किया था। फिर हमने एफ और वी को किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में एंटी क्लॉकवाइज मोशन, इट मीन्स एस सर्कल की तरफ बनाया था, फाइनल में बनाया था। शुरू में रूल फाइनल का आया था तो वो एफ और वी था। फिर रूल आया था कि अगर इजीली ज्वाइन होता है तो मिडल में भी हम एफ वी और एन हुक को यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद एक रूल और आया था कि हम फाइनल हुक तो था ये एफ और वी, मिडल में भी यूज़ किया। अब ये क्या बताया गया था पिछली क्लास में कि हम एफ वी और एन हुक को के साथ हाल्विंग भी यूज़, इट मीन्स टीओडी एडिशन करेंगे, ये हमने बताया था। तो नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है इसी चैप्टर का, चैप्टर 12th का, कि आपको इसमें ये कहता है फाइनल एस सर्कल इज रिटर्न इनसाइड द एफ और वी हुक। ये पेज नंबर 100 पे है। सभी स्टूडेंट्स अपनी पिटमैन की बुक खोलें और पेज नंबर 100 पे आ जाए। रूल कहता है कि फाइनल एस सर्कल इज रिटर्न इनसाइड द एफ और वी हुक। ये कहता है कि किसी भी वर्ड में जब लास्ट में एफ और वी होगा और उसके बाद एस भी आ जाता है
तो वो इनसाइड कर्व के हुक के अंदर की तरफ बन जाता है। जैसे वर्ड है प्रूफ, इस तरह, या प्रूव, यही वर्ड प्रूव बनेगा। उसके बाद है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, तो फाइनल एस सर्कल एफ और बी के इनसाइड हमारा यूज होगा इजीएस्ट वे के लिए, आसानी के लिए, कि लास्ट में हमारा एस भी जुड़ेगा। उसके बाद है ये कहता है फाइनल सर्कल और फाइनल लूप रिटर्न ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रोक एज द एन हुक इंक्लूडिंग द एन। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि ये जो रूल बताया है इन्होंने, एक बार मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, पीछे के रूल में जाऊंगा, कि इनिशियल में हमने ऐड किया था, हमारा इनिशियल सर्कल था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये लॉजिकली समझ में भी आ जाएगा कि इनिशियल और फाइनली सर्कल को हम कैसे यूज कर रहे थे। इसने बताया था कि इनिशियल सर्कल और लूप क्या थे, एस सर्कल, एस डब्ल्यू और एस टी। इसने एक रूल बताया था डबल कॉन्सोनेंट वाली सीरीज में कि अगर आर, जैसे आर हुक हमने यूज, डबल कॉन्सोनेंट में आर हुक और एल हुक यूज किया था। इसने बताया कि इनिशियली कोई भी सर्कल या लूप अपनी पोजीशन छोड़ के आर की तरफ आ जाएगा तो उसमें आर इंक्लूड हो जाएगा। जैसे वर्ड इसने बताया था कि ये स्वीट वर्ड है, इधर आ गया तो स्वीटर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनिशियली भी सर्कल और लूप को हमने आर के साथ इंक्लूड किया था, ऐसे ही अब ये कहता है कि फाइनल सर्कल, लूप और हुक जितने भी हैं जो हम फाइनल में यूज करते हैं, उनके साथ अगर आपको एन भी ऐड करना है तो रूल यही है कि जो एन हुक है उसकी तरफ सर्कल बनेगा। आप इस चीज को देखिए, ध्यान रखिए कि ये रूल आपको इनिशियल दे रहा है। फाइनल में कहता है कि फाइनल सर्कल और लूप, फाइनल में लूप हमारा कौन सर्कल कौन सा है भाई, फाइनल सर्कल एस है हमारा, फाइनल सर्कल हमारा एस एस है, फाइनल लूप हमारा एस टी लूप है। यही तो हमारे फाइनल है सर्कल और लूप्स, इनके अलावा कोई नहीं। भी कहता है कि ये अगर अपनी पोजीशन छोड़ के एन हुक की तरफ चले जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एन ऐड हो जाएगा। कैसे, देखिए देखिए कि जैसे ये कहता है फाइनल में एन हुक है, हम कहते हैं चे के साथ एन हुक ही है, मान लो फर्स्ट प्लेस पे इसको लिखते हैं तो चैन होगा। अभी कहता है सर्कल ऐसा आ गया, चांस, बिकॉज एस सर्कल तो ये होता है। अभी कहते हैं एन की तरफ फाइनल में एन हुक की तरफ सर्कल कोई भी लूप कोई भी आएगा तो एन ऐड हो जाएगा, चांस। अगर इसी को हम चांसेस कहेंगे तो इसको डबल बड़ा हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आपका एस टी लूप का मैं बताता हूं कि हमने वर्ड अगेंस्ट, नीचे एन की तरफ, जबकि एस टी लूप होता है ऊपर। अब ये एन की तरफ आ गया तो आपका इसमें फाइनली एन ऐड हो गया। तो रूल वही है कि फाइनल में कोई भी सर्कल और लूप अपनी पोजीशन छोड़ के अगर एन हुक पे, ये स्टेट कॉन्सोनेंट में, सिर्फ स्टेट कॉन्सोनेंट में, कि फाइनल में कोई भी लूप और सर्कल अपनी पोजीशन छोड़ के एन हुक की तरफ जाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे वांट्स, वांट्स वर्ड है, अभी देखो वांट्स, ये एस सर्कल होता तो ऊपर होता है, ये इसने कहा ऐसे आएगा, एनटीएस वांट्स। क्लियर? तो उसके बाद जो है पेज नंबर 101 पे, जैसे मैंने बताया ये स्ट्रेट स्ट्रोक में सिर्फ होगा कि आप फाइनली सर्कल, लूप और हुक को एन की तरफ करके एडिशन हो रहा है एन का। लेकिन अगर करो में ऐसा हो तो रूल है ए सर्कल रिटर्न इनसाइड एन हुक अटैच्ड टू ए फुल लेंथ कर्व एडेड द फाइनल साउंड जेड ओनली। ये कहता है कि भाई अगर किसी कर्व के अंदर की तरफ एन के बाद एस आता है, एन के बाद, तो वो तो सर्कल या लूप हो ही नहीं सकता। तो इसने कहा फुल लेंथ कर्व जो है हैवी साउंड बोलेगा, मींस दिस। इसमें वर्ड आपका है लॉन्स, हैवी साउंड के लिए बोल रहा है। फुल लेंथ कर्व है
तो हैवी साउंड आएगा लॉन्स, दिस इनसाइड, बिकॉज कारो कॉन्सोनेंट में हम सर्कल लूप को इनसाइड कर ही नहीं सकते, तो हमारा तो एस सर्कल है, वहां पे एस एस भी है, एस टी भी है कारो के अंदर की तरफ, तो हुक के अंदर की तरफ ही बनेगा। उसके बाद है ए सर्कल रिटन इनसाइड एन हुक अटैच्ड टू ए हाफ लेंथ कर्व एट द फाइनल साउंड एस और जेड। अगर यही जैसे मैंने बताया फुल लेंथ कर्व में तो हैवी साउंड आ रही है जेड ओनली, बट अगर ये साउंड आपकी रहेगी आपकी हाफ लेंथ के साथ, इट मीन हाल्विंग के साथ जब हम कर रहे हैं जैसे, तो एस और जेड दोनों आएगा, एस और जेड अगर वो हाल्विंग के साथ हो रहा है, हाल्विंग के साथ हो रहा है हुक के अंदर की तरफ, तो फाइनली एस और जेड दोनों आएंगे। उसके बाद एक सिंपल सा रूल और है, आफ्टर ए कर्व्ड स्ट्रोक द लाइट साउंड ऑफ एनसी, स्पेशल है ध्यान रखना कि कर्व के इनसाइड एन के अंदर की तरफ एन हुक बना, उसके अंदर सर्कल एस बन गया, लेकिन एक साउंड होती है किसी भी कर्व स्ट्रोक के बाद अगर लाइट साउंड है एनसीई, तो उसमें हम कर्व के अंदर की तरफ कोई सर्कल यूज नहीं कर सकते, नो, बिकॉज इस साउंड के लिए आप एन और एस ही यूज करेंगे। इट मींस एन पूरा स्ट्रोक और उसके अंदर हमारा एस सर्कल, लाइक वर्ड अनाउंस, ध्यान देना, अनाउंस वही है कि आपकी ये साउंड जो है एनसी लाइट साउंड है, इसके लिए आप कभी कर्व के अंदर सर्कल नहीं बनाएंगे, एन और एस से ही एन सी एंस होगा, लाइट साउंड है, जहां पे स्पेलिंग में एन सी आता है वही होगा। साउंड में हम हैवी अनाउंस, इसी में आपका ऑफिसेस, ऑफेंसेस, ऑफेंस या ऑफेंसेस, यस, तो उसमें हम लाइट साउंड के साथ यूज करेंगे एन और एस। ऐसे इसी में वर्ड है अनाउंस्ड, एस टी बी, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड वही आ गया कि आपका ये एस टी लूप लेकिन लाइट साउंड के साथ है, अनाउंस्ड लाइट साउंड एंस, तो उसमें हम अंदर की तरफ यूज करेंगे और पूरा ही स्ट्रोक के साथ एन के साथ सर्कल या लूप यूज करेंगे। फाइनल रूल है व्हेन ए, ये बड़ा अच्छा रूल है जो लगभग हर चैप्टर में आता रहा है, जिससे हम वावल को छोड़ रहे हैं, वावल इंडिकेशन मिल रहा है और आउटलाइन से हमें सुविधा आसानी से आउटलाइन मिल रही है कि हम अब देखो फिर दोबारा उस चीज पे आ जाओ। रूल स्टार्ट हुआ था जब एफ और वी या एन हुक, हम ये हुक फाइनल में ही यूज किया, हमने रूल यहीं से शुरू हुआ था, फाइनल में यूज किया। अब ये कहता है कि व्हेन ए वावल फॉलोज एफ वी और एन एट द एंड ऑफ ए वर्ड, जब लास्ट में एफ वी या एन आता है और उसके बाद वावल आया है, तो ये कहता है इट इज नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक इन ऑर्डर टू बी एबल टू इंडिकेट द फॉलोइंग वावल। ये जरूरी है कि लास्ट में उस टाइम में हम एफ वी और एन की यूज नहीं करेंगे कि उस वावल को इंडिकेट करने के लिए उसके बाद वावल आ चुका है, तो आगे जाके हमें सुविधा ये रहेगी, आसानी ये रहेगी, हमें वावल छोड़ना है, वावल का हमारे पास टाइम नहीं है। वर्ड है कफ, इसमें एफ और वी यूज हो रहा, कफ, कफ, एफ, कफ, कॉफी। अब एफ के बाद वावल आया है तो जाहिर सी बात है हमें एफ और वी पूरा यूज किया है। ये यही समझा रहा है कि लास्ट में एफ वी और एन लास्ट में है, उसके बाद वावल आ गया तो आप स्ट्रोक यूज करोगे, ना कि कोई हो, ये इंडिकेट करेगा कि वावल ना लगाओ। कॉफी है, कफ है भाई, कफ है, कॉफी है। ऐसे एक और बताता हूँ आपको मैं वर्ड, आपका रिव्यू है और रफ है, रिव्यू, रफ, क्लियर, क्योंकि इसमें अपना फाइनल है तो आप यूज कर रहे हैं, वावल आ गया है तो आपने स्ट्रोक पूरा यूज किया, चाहे वो ज्वाइन हो रहा है जिस ज्वाइन है। उसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है, बड़ी अच्छी शॉर्ट फॉर्म्स है, इसमें
डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, बैलेंस और बैलेंस्ड। ध्यान से आपको अच्छी तरह से याद करनी है शॉर्ट फॉर्म। पीछे वाले शॉर्ट फॉर्म्स का भी रिवीजन करना है डेली। डिफिकल्ट है एफ हुक के साथ, जबकि डिफिकल्टी हो जाएगा ये, तो ये ऐसे रहेगा, शॉर्ट फॉर्म बताया गया। बैलेंस, बैलेंस, BLNS, बैलेंस। और बैलेंस्ड, ये ऑन द लाइन है, बैलेंस्ड, ST लूप आ जाएगा। आसान सी शॉर्ट फॉर्म से याद करनी है। रिस्पेक्टिव, रेस्पॉन्सिबल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए रहेगा। सेंटेंस वाइज आपको देखना। ग्रेट, गार्ड और गोल्ड, अच्छी शॉर्ट फॉर्म है। ग्रेट, ग्रेट हालविंग है, गार्ड और गोल्ड, इसमें एल होता है, गोल्ड, गोल्ड, गार्ड, ग्रेट। फिर इसमें स्पेशल फ्रेज है एट वंस। हमने वर्ड लिखा है, बहुत लिखा है, एट यूज करते हैं हम। एट फर्स्ट प्लेस पे होता है, एट हम लिखते हैं एट, ये एट है हमारा, बहुत के साथ है, लेकिन कहता है एट वंस बहुत आता है, तो इसने कहा ये फ्रेज है, इसमें सर्कल एन की तरफ चला जाएगा, एट वंस रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 12 अभी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वही आपकी एक्सरसाइज है 93, 94, 95 और 96। आपको वही पढ़ के अच्छी तरह से एक रजिस्टर की एक लाइन में जहाँ तक आता है उसको 5 बार या उससे ज़्यादा रिपीट करना है। शॉर्ट हैंड में फिर 6 लाइन में इंग्लिश लिखनी है, नेक्स्ट में इंग्लिश लिखनी है। और ये ज़रूरी है कि आप साथ साथ हमारे डिक्टेशन लिखिए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में भी डिक्टेशन से स्टार्ट होगी, आपको लिखना होगा, तो तैयारी अपनी बिल्कुल कंप्लीट रखिए। हमारी क्लास अपलोड होने से पहले हमने 31 तक इस क्लास में आपको डिक्टेट किया है, 32 से हम आपको नेक्स्ट में डिक्टेशन देंगे। तो अब ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी अच्छी शॉर्ट हैंड करेंगे, प्रैक्टिस हमारे अनुसार करेंगे। थैंक यू।